السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما محترم جناب راجہ ریاض صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی ہے۔ آئیے سیدھا وہیں چلتے ہیں۔ معزز یار، میں نے کہا بھی تھا جنید صاحب کہ آپ میرا یہ تعارف نہ کرائیں۔ کیا آپ نے پھر پیپل پارٹی کے صوبائی رہنما کہہ دیے۔ اب سیدھا کہیں کہ پی ٹی آئی کے وفاقی رہنما، اور پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ پیپل پارٹی کے اگر آپ صوبائی رہنما تھے تو پھر ہماری طرف تو آپ کو یو سی کے رہنما بنے گے۔ آپ ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں تو کچھ طے تو کیا ہوگا نا آپ نے راجہ صاحب؟ چھوڑ دیں آپ اس بات کو، اب معزز صحافی آئے ہوئے ہیں تو معزز صحافیوں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ خبر اب پھیل ہی گئی ہے، پہلے تو میں یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ والے جلسے تک مٹھ رکھی جائے، مگر چونکہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کو آپ نہیں دبا کے رکھ سکتے، اور ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ساری خبر اڑا دی ہے، اس لیے میں اب خود بھی اس کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں، چونکہ سی این این، فاکس نیوز اور بی بی سی میں بھی یہ خبر آ گئی ہے۔ اچھا، اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف ایز وفاقی رہنما جوائن کر لی ہے۔ ایز وفاقی رہنما؟ ہاں جی۔ تو راجہ صاحب آپ پیپل پارٹی میں کتنی دیر رہے ہیں؟ محترم، اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا کہ اس پارٹی کا ذکر اب چھوڑیں، اب میں نے جو نیا عہدہ سنبھالا ہے اس کی بات کریں۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اس میں یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں کالے رنگ کی کمی تو آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ چھوڑ دیں جنید صاحب، آپ بھی بچوں کے ساتھ مل گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں پچھلی پارٹی میں تھا، یہ پچھلی پارٹی مین پی پی پی، پاکستان پچھلی پارٹی، اس میں نے صرف اس لیے ریزائن دیا ہے کہ میرے ساتھ وہاں پہ انصاف نہیں تھا ہو رہا۔ جس مشقت کے ساتھ میں سیاست میں محنت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پہ انفٹ تھا۔ مجھے اب پتا چلا ہے کہ تمام اجلاس میں پاکستان پچھلی پارٹی کے میں جتنی بھی سجیشنیں دیتا تھا، یا میں پرپوزل پیش کرتا تھا، یا میں جو اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا، اس پہ کوئی کان کیوں نہیں تھا درتا۔ یہ اب مجھے ڈی جے نے بتایا کہ ہر پروگرام میں آپ کا مائک بند کروا دیتے تھے۔ یعنی کہ آپ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے تحریک انصاف میں آئے ہیں۔ آپ بہت اچھے لگے ہیں مجھے، آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ فضول ہی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان پچھلی پارٹی کو لاہور کا قلعہ بنائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک مستری نے بتایا کہ راجہ صاحب یہ مغلوں کے قلعے کے بعد لاہور میں کو دوسرا قلعہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بھی میں نے سوچا کہ ٹائم ضائع نہ کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف جوائن کی جائے۔ راجہ صاحب آپ جو مرضی کہتے جائیں، لوگ آپ کی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا اچانک فیصلہ، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی۔ سارا آپ چیزہ لے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا بندہ، ادھر آپ بیٹھ کے میرا مذاق اڑاتے ہیں اور اب صحافیوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ چیزہ ویزانی، میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی پرانی رفاقت چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ لے پھر جنید صاحب، آپ کے پروگرام میں میں نیوز بریک کر رہا ہوں۔ بتائیں۔ پاکستان پچھلی پارٹی چھوڑنے کی میری سب سے جو اہم ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی اردو نہیں ٹھیک۔ دیکھیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اگر لیڈر کی اردو ہی نہیں ٹھیک تو پھر اس کے ساتھ محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ میں قوم پرست آدمی ہوں، میں ملک کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جس بندے کی اردو نہیں ٹھیک میں اس کو لیڈر نہیں مانتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اردو کے معاملے میں کتنا سخت ٹچی ہوں۔ اسی لیے میں پیپل پارٹی چھوڑ کے تو یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر بیٹھا ہوں کہ یہاں پہ یار بات کرنے دیں، آپ کی مہربانی، تو پھر گل کر لیں۔ نہیں آپ کر حد ہو گئی ہے یار، ایک بات ہو رہی ہے تو اس کو سمجھانے تو دیں۔ سوری راجہ صاحب، سوری۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف میں نے جوائن کی ہے، اس میں
उर्दू वाले चूंकि बहुत अच्छे, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे उर्दू अदब के असातिज़ा मौजूद हैं, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। देख लें, उन्होंने थोड़े अरसे में इमरान खान की उर्दू ठीक करा दी है। इमरान खान साहब भी पहले बिलावल की तरह था को थी और थी को था कहते थे। तो मैं समझता हूँ जब तक पार्टी में था थी था होता रहेगा, वहां पे तरक्की नहीं हो सकती। सर आपको पता है आपका ताल्लुक फैसलाबाद से और आपका मुकाबला बराह रास्त आबिद शेर अली साहब से है। उसने मेरे साथ क्या मुकाबला करना है, उसकी भी नहीं उर्दू ठीक। आप देखते जाए, मैं हर उस शख्स को तोऊंगा जिसकी उर्दू नहीं ठीक। तो राजा रियाज साहब, आपने उर्दू किससे सीखी जी? उर्दू में मेरे उस्ताद जो हैं वो पोलो पहलवान के छोटे भाई अक्की पहलवान थे, जिनका अनोखी पहलवान के साथ मुकाबला हुआ था और अनोखी ने उनकी बाह मरोड़ के उनकी आंखों में उंगलियां मारी। राजा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपके पार्टी छोड़ने पे पीपल्स पार्टी ने यौम तशक्कुर मनाया है। देखे, इस हवाले से अल्लाह के फजल से मैं वाहिद दुनिया का खुश नसीब सियासतदान हूँ कि जिसके पार्टी छोड़ने पे पार्टी में यौम तशक्कुर मनाया जाए। आजकल चूंकि वो गाना बड़ा हिट है ना, शक्कर बना रहे मेरा पिया मुझसे मिलन आया, तो ये शक्कर के साथ उन्होंने तेल लगाई है, चूंकि पीपल पार्टी में वो तो होती रहती। तो ये उन्होंने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, मगर मैं अब छोड़ चुका हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब जितने मर्जी वो यौम मनाए। राजा साहब, उन्होंने आपके जाने पे शुक्र अदा किया है। हाँ जी, उन्होंने आपके पार्टी से जाने पे शुक्र अदा किया है। यौम तशक्कुर ऐसे कहते हैं। मैंने कहा था ना उनकी उर्दू नहीं ठीक। ये शुक्र मनाने को नाम उन्होंने यौम तशक्कुर रख दिया। राजा साहब, वैसे इतराफात की वजह तो बताएं ना। पहली बात तो ये है कि सहाफत का शौक हो तो घर से मूड़ा लेके आते। आप उस वक्त के खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आप यौम तशक्कुर मनाने वालों में से तो नहीं है। जवाब देना, इख्तलाफात की क्या वजह होनी है? मैंने 1 पॉइंट एजेंडा बता दिया पार्टी छोड़ने का। बिलावल की उर्दू नहीं ठीक। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खबरों की तरफ आए जी। ठीक है जी, अगर आपको अक्ल और दानिश की बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, खबर की तरफ आ जाए। दानिश्वर फिर वेला ही है। वैसे ये बहुत इस मुल्क का ड्रॉबैक है कि दानिश्वर और सदर वेले ही बैठे होते। जी, आज की पहली खबर सुन लें। इमरान खान के हाथों से वजीर आज़म बनने की लकीर मिट चुकी है। राना सनाउल्लाह। खबर सुनाओ, तुम जुगते सुनानी शुरू हो गई। यार ये गौरी को इधर बिठाओ, इस लड़की को उधर बिठाओ, अगर इसने इस तरह की बातें करनी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान के हाथ से वज़ीर आज़म की लकीर ही मिट गई है। वो इमरान खान के हाथ चिट्टे हैं ना, तो वो समझते हैं कि लकीरें नहीं होनी। राना साहब, हाथ की लकीरें काली नहीं होती, उसी रंग की चिट्टी सी हुई होती है। जरा हाथ झाड़ के आपने देखना तो कहीं हाथ पे मिट्टी ना पड़ी हो। राना साहब को समझाओ कि हाथ की लकीरें बेशक चिट्टी हो जाए, खून नहीं चिट्टा होना चाहिए। अजीजी, मेरे हाथ की लकीरें तो काली हैं। तो तुम बाकी कौन सा आदशी गुलाबी हो? वैसे ये राणा साहब ने जब नजूमियों वाला काम शुरू किया ना, अच्छा किया है, चूंकि वजारत के बाद बंदा वेला बैठा बुरा लगता है। अक्सर ऐसे नजूमी सड़क पे तोता रख के बैठे होते हैं और कोई गाहक नहीं होता, तोते से ही बातें कर रहे होते हैं। सुना बाल बच्चा ठीक ही? तोता जवाब में कहता है, मेरा बाल बच्चा चढ़, अपने बाल बच्चे भी सुना, महीना हो गया गा की कोई नहीं बढ़े। यार ये लड़का पंजाबी बोल रहा है। पंजाबी छोड़ो, लड़के पर थैंक यू वेरी मच। ये होती है बुजुर्गी की निशानी। बुढ़े बंदे को लड़का कह देना वो बहुत खुश हो। ये राणा साहब ने वैसी बात की है जैसे किसी का को मोबाइल छीन के ले गया ना, तो पीछे से वो बंदा कहता है ले जा मोबाइल चार्जर तो मेरे को लिए ना। अब अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो राणा साहब कहेंगे बन जा वज़ीर आज़म, तुम्हारे हाथ पे लैन तो कोई नहीं है ना। राणा साहब, इमरान खान की लैन को छोड़े हजूर, अपनी लैन दुरुस्त करें, वापडा की लैन दुरुस्त करें, रेलवे लैन दुरुस्त करें, ट्रैफिक की लैन दुरुस्त करें, कानून की लैन दुरुस्त करें, एयरलाइन दुरुस्त करें, अगर अगली दफा भी वज़ीर आज़म बनना है तो। वजीर रहने के लिए जो लाइन दुरुस्त होनी चाहिए ना, वो राणा साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। अमान से अमान से पढ़ो फिर अगली खबर, हम में फिर लाइन दाइन में पड़े हुए। राणा साहब पता नहीं किस लाइन की बात कर रहे हैं। वैसे जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे
तो लोग यही कह सकते हैं कि लाइन लेंथ क्या बात है। बिल्कुल। जी अगली खबर है, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है तो मेरा मुर्शिद अब बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, उनको खुशियां मिल गई हैं, इसलिए मैंने धमाल शुरू कर दिया। बस करो यार। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि एक बुढ़ापे में धमाल और एक बुढ़ापे में गन्ना चूसना बहुत रिस्की होता है। सही कहता, बुढ़ापे में गन्ना चूसे ना तो बीड़ गन्ने के साथ ही चमड़ जाता है। साथ वाला बंदा देख के कह रहा होता है कि यार ऐत की दंदाली फसल हुई है। जी सुने तो सही। जी गिलानी साहब का कहना है, मुझे नाअहल करार दिया गया था, अब बारी नवाज शरीफ की है। बिल्कुल ठीक है, मेरे मुर्शिद ने फूंक मार दी हुई है। उन्होंने बेचारों ने अभी आधी बारी ली थी तो उनको वापस पवेलियन भेज दिया। जितनी देर तक उनको आधी बारी वापस नहीं देंगे, आपका हर वजीर आजम आधी बारी लेगा। कैसे दे बाकी बारी उनको? यार किसी तरीके से, चलो ऐसे गेंद करा दे ना, ऐसे करा घुमा के, यानी कि वटा बाल करा दें। यार वटा बाल कराओ पावे रोड़ा बाल कराओ, मेरे मुर्शिद को बाकी बारी दो। तुम लोगों को मेरे मुर्शिद की अहमियत का नहीं पता। वो देखो, वो अमेरिका से हेनरी ने फोन करके कहा कि मुर्शिद पाक मैं सदके ऐसे भी किया हेनरी ने फोन पे। उसने कहा मुर्शिद दुआ करें मैं सदर हो जाऊं, मैं सदर हो गई तो मैं सारी फैमिली को व्हाइट हाउस में इनवाइट करूंगी। देखो यार कहां से दुआएं ले रहे हैं लोग, और हमारे लिए तो फिर घर दा पीर दाल बराबर ही है ना। मेरे मुर्शिद ने देखना, अब दुआ कर देनी यार हेनरी ने जित जाना। मेरे मुर्शिद ने जाना है दावत पे, विद फैमिली नहीं जाना, कले ही जाना है। क्यों? हेनरी ने बुलाया है ना। अब भाई जी औरत याद दावत दे तो फिर बंदा सोचता है कि यार कितने बेचारी इन्नियां रोटियां पका दी। मर्द दावत दे तो उसका तो पता होता है ना इसने होटल में खिला देना है। तो अब हेनरी बेचारी कहाँ पे 150-200 रोटी पकाएगी, कादर ही 19-20 रोटियां खा जाएगी। तो ना रोटियां पकाए, दाल चावल पका ले। शाबाश, ये क्लिंटन की बीवी है या अय्यी की बीवी है? दाल चावल पका ले। अजीजी की बीवी नहीं, अजीजी है। अगली खबर पढ़े, ज्यादा नहीं हंसते इन बातों पे। जी खबर सुनिए, अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसकी कामयाबी के लिए ट्रंप की तस्वीर नस्ब करके आग की पूजा शुरू कर दी। इसी आग में देखना ट्रंप की फोटो सड़ जाएगी। ये तो ट्रंप जो है इसके तो खिलाफ इतनी सख्त मुहिम शुरू हो गई हुई है अमेरिका में। लोग कहते हैं ये नफरत फैला रहा है, मुसलमानों के हमें फजूल खिलाफ हुआ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक अपनी रहमत रखे तो मुसलमानों को इसके मुखालफत से क्या होना है। ये तो आप बेवकूफ सा बंदा है। ऐसे बंदे तो KFC में झूठ बोल के कोट खा लेते हैं। अच्छा। हाँ, KFC में जाके कह देते हैं कि मुझे 3 चिकन पीस दें, माँ बाबे KFC वाले का सके मामे का पुत्र। आगे से सेलमैन पकड़ लेते हैं, ओदी ते अम्मी कली कली भैन सी तो। हाँ, सेलमैनों को यार सारा पता होता है मालकों का। वो आके के फिर कह देती हैं कि जा बाबा बाहर बेंच पे बैठा हो तो बोलो लिखा के। और वो बाबा तुम्हें पता है अब लिखता ही नहीं, लेकिन उसके पास लोट आ गए हैं, वो तो जूती पे नहीं लिखा। नाज़रीन, यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पहले जरा दोनों हाथों को ऐसे करो, ये लोग तुम्हें कसम लगे खोलना ना। ठीक है। डिश डिश डिश। दो नाली वाली बीन नहीं होती यार तुम हंस रहे हो। यार उस बेचारे का शौक है, उसको पूरा करने दो। यार मुखबरियों की सीरियसनेस मांद पड़ जाती है। डिश। पहली मुखबरी जो सुना रहा हूं बहुत सेंसिटिव और बड़ी दिलचस्प भी है। चले ठीक है सर, मैं अपनी हूं भी सीरियस कर लेता हूं। यार पागल लग रहे हो, कुछ अकल करो। मुखबरी सुनो। मशाहदुल्लाह साहब जो नून लीग की कराची से बड़ी तगड़ी आवाज समझे जाते हैं जी, बल्कि वफाक की भी आवाज समझे जाते हैं, क्योंकि वफाकी मिनिस्टर भी थे जी। उनकी मिनिस्ट्री खत्म कर दी गई थी सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने किसी बाहरले मुल्क के चैनल को इंटरव्यू देते हुए अस्करी अदारों के खिलाफ कोई बात की। अच्छा। उस वक्त चूंकि हालात ऐसे बन गए कि वजीर आजम साहब ने उनकी मिनिस्ट्री वापस ले ली और अपने पास रख ली। पीछे आराम से रख ली।
اب سنا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ پاناما لیگ کی لڑائی کے اندر سمجھتے ہیں کہ ایک آواز مشاہد اللہ کی بھی ہونی چاہیے. وہ میرے ساتھ سنسیئر بھی ہیں اور بولتے بھی بڑا تگڑا ہیں, اس لیے ان کو دوبارہ وزارت دی جا رہی ہے. مگر وزیر اعظم صاحب ایک وہ رکھتے ہیں, وہ کیا وہ انگلش میں جو ہوتی ہے یار, وہ جو ریلوے کی ٹکٹ بھی کراتے ہیں. اچھا, ریزرویشن یہ ہے کہ اگر ان کو دوبارہ منسٹری دی گئی تو عسکری ادارے نہ مائنڈ کرے. آئی مین ایک پاسے پہاڑ ہے اور دوسرے پاسے کھائی ہے. اچھا, پہاڑ کون سا اور کھائی کون سی ہے؟ یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک, میں تمہیں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. بالکل تم لوگ نہیں مانتے, یہ نہیں ٹھیک لڑکا. تم نے اس وقت ماننی ہے میری بات جب یہ تمہیں کہے گا کہ یار جا کے تو ماچھ جیل ہے یہ کو روٹی سر دینے آئیں گے, سر کیوں نہیں. دیکھا ہے کو بات کرنے والی. یار آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے عزیز صاحب اللہ خیر رکھے, ایسا وقت کیوں آئے گا؟ نہیں یہ کیوں موقع ہے, وہ میرے منوس دوست ہیں, اللہ سے خیر مانگتے ہیں. ڈش ڈش ڈش. گوری سانپ کا مزہ نہیں لیتے, اگر نظر آئے تو فوراً اوپر اٹ مار دیتے. عزیزی مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہی نہیں, مجھے ڈنگ مارے گا بھی اسے خود انفیکشن ہو جائے گی. یار مخبریاں ادھر ادھر نہ میری کرو. وزیر اعظم نواز شریف صاحب ابھی تاجکستان کا دورہ کر کے آئے. کس لیے گئے تھے؟ کچھ واضح نہیں ہو سکا, حیران کن دورہ تھا. واہ یہ کرتا ہوں مخبر کے تھرو. مخبر بتاتا ہے کہ عجیجی تاجکستان میں ایک شاہ ہمدان بزرگ ہوئے ہیں, 14ویں صدی کے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہوئے ہیں, بہت بڑے. شاہ ہمدان کا ادھر دربار ہے. میاں صاحب کو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ادھر چل کے منت مانگتے ہیں. یہ جو سیاپا پڑ گیا ہے نا, یہ نامے والا, یہ ادھر جا کے دعا کرتے ہیں کہ تو اللہ مہربانی کر دے. پھر میاں صاحب خواجہ صاحب کے ساتھ تاجکستان پہنچے اور جا کے تو وہ شاہ ہمدان دربار پہ سرکار کے دعا مانگی انہوں نے, اور ساتھ منت بھی مانگی ہے. منت کیا مانگی ہے؟ منت مانگی ہے کہ اگر یہ پاناما لیگ خیر خیریت سے گزر گئی نا تو ادھر 2 دیگیں مٹھے کی اور 2 دیگیں لونے کی چڑھائیں گے. اور وہ ادھر کیا آئے ہیں بابا جی کو کہ یہ منڈا آئے گا خواجہ آصف چڑھانے کے لیے. ادھر جو پھر ملنگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اعتراض کیا جی کہ آپ آنا ہے تو بچوں چول کھا جاتا ہے. پھر میاں صاحب نے کلیئر کیا کہ اب یہ وہ کشمیری نہیں رہا, اب سمارٹ ہو گیا ہوا, اب اتنا کھانا نہیں کھایا. میاں صاحب نے پھر جب دعا مانگ لی تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ذرا باہر کھلونا ماننا. میاں صاحب باہر چلے گئے تو ادھر ادھر دیکھ کے خواجہ صاحب نے کہا بابا جی حیور میرے حلقے دا بھی سیاپا پہ تاندلی کا کیس ہوا دعا کرنا میرے حق چی ہو جائے. میرے حق میں ہو گیا تو میں بھی مٹھے چولوں کی پتیلی لے کے آؤں. پھر ایک ملنگ نے کہا خواجہ صاحب میاں صاحب دیگیں دے رہے ہیں, آپ پتیلی دے رہے ہیں, آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے یہ تو ادھر تھا ہی نہیں. میرے مخبر نے جتنی بات بتائی ہے میں اتنی بتاؤں گا, وہی ماچھ جیل والی بات. چلو آپ کو نہیں پہنچائیں گے, انہیں پہنچا دیں گے روٹی. اب میں سے اس کی خطرناک باتیں سن کے میرا تو ماچھ ہی مار گیا. اگلی مخبری ذرا سڑے, مزہ آ جائے گا آپ کو. یہ بھی جو آپ کے شو میں آئے ہوئے تھے نا راجہ ریاض صاحب, یہ جب پی ٹی آئی میں آنے والے ہو رہے تھے, گفت و شنیدیں ہو رہی تھی, تو پی ٹی آئی کے ہی 2 ممبر جو اپنا ایک ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے فیصل آباد سے, انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ ان کو بالکل نہ لیں راجہ ریاض صاحب کو. انہوں نے کہا نہیں یار وہ آ رہے ہیں تو آنے دے, اس میں کون سی بات ہے. بہرحال مخبر بتاتا ہے کہ انہوں نے کافی زور لگایا. اسی وجہ سے راجہ صاحب نے پہلے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ میں آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں, جب آپ فیصل آباد آئیں جلسہ کرنے کے لیے تو آپ سیدھا پہلے میرے کار آئیں.
हाँ जी, उधर आपको मैं गोंगली चौल खिलाऊंगा। उसके बाद इधर से जुलूस की शक्ल में हम इकट्ठे जाएंगे जलसा का। मगर जब वो दो बंदों ने अपना मुखालफत की ना, तो इमरान खान साहब ने फिर राजा साहब को कह दिया कि राजा जी ताड़े घर नहीं आना, हम जाएंगे सीधा जलसा का, तुसी रक्शे ते बैठ के उत्थे ही आ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गौरी जी, इस तरह मैं एक दिन तुम्हारे घर गया था तो तुमने खिड़की खोल के खुद ही मुझे कह दिया था ना कि गौरी साहब घर नहीं है। आज पनामा लीग के साथ वैसे ही हुआ। हाँ जी, वो खत लिखा था वजीर आज़म साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कि कमीशन बढ़ा दे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे से निकल के बाहर कह दिया कि भाई जी पहले खुद जाके तो अपने कानून शनून सीधे करो, चलो ऐसे नहीं कह रहे। अब क्या होगा भाई जी? अब नवाज शरीफ साहब को संजीदगी दिखानी होगी जो अभी तक वो नहीं दिखा पा रहे। वेरी सिंपल, मुंह सीरियस कर ले, बहुत ज्यादा सीरियस कर ले, मुंह भी सीरियस कर ले और अपने एक्ट को भी सीरियस कर ले। किस तरह बताओ तो सही ना। भाईजान बात ये है कि अब इसको सीरियसली एड्रेस करें। ये मामला अब इस तरह टलने वाला है नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि वजीर आजम एक बंद गली में दाखिल होते जा रहे हैं। ये मज़ारों पे जाके मन्नत मांगने से या रोजाना अपने 3 तर्जुमान जो हैं उनको टीवी स्क्रीन पे ले आने से ये मामला अब नहीं होगा, हल नहीं होगा। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के रिफ्यूजल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जवाबी खत है, तुम जरा उसके लफ्जों पे गौर करो। जब से ये वजीर आजम ने इस कमीशन की तश्कील की बात की थी और खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उस दिन से लेकर आज तक अपोजिशन जितने दलाइल देती रही है उन सब की ये एंडोर्समेंट है, उन सब की तस्दीक की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जितने दलाइल जो हुकूमती वज़रा दे रहे थे उन सब की तरदीद की गई है इस खत में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी इस खत के पहले पैरे में ही लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए टूथलेस कमीशन। अच्छा समझियो गौरी? नहीं समझाओ यार इनको। नहीं पहले तुम समझाओ ना। नहीं तुम ही समझाओ। बंदा सियाना है जो तो किस लिए सारे सियाने। यार आप समझ लो ना, फिर महल्ले में हमें समझा देना। तुम सीरियसली देखो कि यही कहा जा रहा था ना अपोजिशन की तरफ से कि ये एक बेख्तियार कमीशन होगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कह दिया कि टूथलेस के सब बिल्कुल बेख्तियार कमीशन होगा और विद लिमिटेड स्कोप, जिसका बहुत ही महदूद इख्तियार होगा इन्वेस्टिगेशन का। फिर अपोजिशन की तरफ से यह एतराज किया जा रहा था कि जनाब अली आपको तो बता ही नहीं रहे किसके किसके खिलाफ तहकीकात होगी। यह भी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है आगे जाके कि हुजूर वाला हमें उन बंदों के नाम दें, हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दें, हमें उन खानदानों के नाम दें, उनकी तफसीलात दें जिनके खिलाफ तहकीकात करवाना मकसूद है। तो वो सब कुछ जो अपोजिशन कह रही थी वो एक तरह से इस खत के जरिए उनकी तस्दीक हो गई है। फिर अपोजिशन यही कहती रही ना कि 56 के एक्ट के तहत कमीशन ना तश्कील दिया जाए बल्कि इसके लिए मुनासिब कानून साजी की जाए। यही चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। तो हुकूमत के लिए तो इस वक्त फेस सेविंग भी मुश्किल है। इसलिए मेरा ख्याल जो सबसे ज्यादा मतलब बुनियादी नौयत का काम है कि वजीर आजम साहब को यह बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उनकी कोर्ट में अब बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल आ गया है। हाय हाय अब उन्हीं को एड्रेस करना पड़ेगा। जी जी। आज असल में सुप्रीम कोर्ट के इस रिफ्यूजल के बाद ये मामला या मसला ये एक बहरान नहीं बल्कि संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। और अब ये मसला जो है ये जवाबी इल्जाम तराशी या कचबहसी या बहस बराए बहस के वतीरे से हल होने वाला है नहीं है। अब हुकूमत को इसकी संगीनी का नोटिस लेना चाहिए, वरना हुकूमत का हाल उस 90 साला बाबे जैसा हो जाएगा अगर इसी तरह कचबहसी वाला रवैया इख्तियार किए रखा। जो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मेरी बाईं टांग में बहुत दर्द रहता है, इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाहिर है ज़ईफुल उम्री, 90 साल उम्र है। आगे से बहस करते हुए कहता है डॉक्टर साहब तो मेरी दाईं टांग की उम्र भी तो 90 साल है, उसमें दर्द क्यों नहीं होता? तो बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा ख्याल है सबसे आसान वजीर आजम के पास जो इस वक्त ऑप्शन नजर आ रही है वो यही अपोजिशन के 7 सवाल है। उसमें भी अहम तरीन सवाल शामिल नहीं है कि ये पैसा आपने बाहर भेजा किस जरिए से है, ये सवाल ही नहीं पूछा गया वजीर आजम से। इवन देन मैं फिर भी ये कहता हूं कि वो 7 सवाल अगर वजीर आजम साहब उनका संजीदगी के साथ जवाब देते, पार्लियामेंट के बाहर दे दे। वो कहते नहीं पार्लियामेंट प्रॉपर फोरम नहीं है, पार्लियामेंट में मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहूंगा, ये सब कुछ मैं कमीशन के सामने कहूंगा। तो 7 सवालों का जवाब तो आप प्रेस ब्रीफिंग में दे सकते हैं। क्यों जी इस तरह की होती है फफे कुट्टड़ माइयां? उसने 7 के 8 सवाल बढ़ा दिए।
ऐसी माइयों के पास जाए ना घर का झगड़ा खत्म करवाने के लिए, वो मजीद बढ़वा देती है। मजीद झगड़ा मैं नहीं बढ़वा रहा, मजीद झगड़ा कौन बढ़ा रहा है? मजीद झगड़ा वो 3 लोग बढ़ा रहे हैं जो रोजाना शाम को किसी भी एक बयान के जवाब में, अपोजिशन के इल्जाम के जवाब में टीवी स्क्रीन पे आके बिराजमान हो जाते हैं। हाँ, वो अपने बिल्कुल अपने बारी बेई बारी रख के ना ईद 5 कार्ड बेचने वाले। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वजीर आजम साहब को बजाय ये कि टीवी पे आके जवाबी इल्जाम लगाने की बजाय अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा और उन इल्जामात का या सवालों का जवाब 2 टोक अंदाज में देना पड़ेगा, वरना हालात किसी तरह भी वजीर आजम साहब के लिए फेवरेबल नहीं है। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। सर ये बताएं कि पीपल्स पार्टी किस तरफ जाएगी? जिधर ट्रैफिक जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उसी तरफ जाएगी जिस तरफ ट्रैफिक जाएगी। अच्छा जी। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रही है, जो आने वाले दिनों में शायद मुमकिन ना हो किसी भी पार्टी के लिए। एक वाज़ेह लाइन लेनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का इस वक्त हाल ये है कि वो अपने दाव पे है। पीपल्स पार्टी को देख के मुझे वो बंदा याद आ जाता है जो किसी डांस पार्टी में जाता है, वहां पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती, एक खातून कुर्सी पे बैठी होती है अकेली, उसको जाके कहते हैं जी आप डांस करेंगी? खातून उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है हाँ क्यों नहीं करूंगी। वो उठ के खड़ी हो जाती है, बंदा जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाता है, कहता है करें बेटा। बहुत अच्छा। यानी वो बेचारी अपनी तरफ से कपल डांस करने के लिए उठी है, अरे वो कुर्सी पे टेक के तो कह रहे जाओ कल्ले करो डांस। सिर्फ कुर्सी पे बैठना है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गर्मी है गर्मी, अंता दी गर्मी, गर्मी है गर्मी, अंता दी गर्मी, गर्मी से मारी मत्ते पड़ी है। मई में कहता है मैं मीटर ना कर दूं तो सूरज मेरा नाम नहीं है। गर्मी है गर्मी, अंता दी गर्मी। आहा गर्मी है गर्मी, जैसा गाना सुनाया ना, पैसे ना दे बंदा अद्धी पट्टी बर्फ लिया दे तुहानू। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਹੀ अब मरे जेड़े लोकी गाने सुनते ने वो सुना, वखरा ही गर्मी है गर्मी शोखा जिया। गर्मियां आईया ने मैं पखे का गुलाफ लाया ते आप पा लिया। मैं क्या को हया कर पुत्र ते लपेट के रख, गर्मियां जान गई तो उहदे ते चाड़ांगे, पखे का गुलाफ है। कहंदे कोई गल नहीं, वो भी मेरे जिड्डा ही है। कोई अच्छा सा कोई पॉपुलर सॉन्ग सुनाओ यार। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੀ। ਮਰੇ ਪॉपुलर ਗਾਣਾ ਸਰਕਾਰ पॉपुलर ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਨਾਮਾ ਹੀ ਜੇ। पनामा लीग विच आया मेरा नाम, पनामा लीग विच आया मेरा नाम, मैं था मर जाने आवे, मैं था मर जाने। शुक्र शुक्र। हाय हाय पनामा लीग विच आया मेरा नाम। 4-5 कोठियां बार में बनाया ने, बार में बनाया ने, बदो बदी ज्यादा ना मेरे उत्ते पाया ने, मेरे उत्ते पाया। किस तरह मेरी जान छुड़ा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय पनामा लीग विच आया मेरा नाम। इतना शौक जे इस बच्चे नु पनामा लीग च आउण दा कि जदों लीक होई है मेरे मगर ही पै गया कि उस्ताद जी मेरा नाम ही किसी तरीके नाल पनामा लीग च आउणा चाहिए। ते सुनिया वड्डे लोकां दी फहरिस्त है। मैं फिर कोशिश की भी, अच्छा वो नहीं मन्ने। फिर मैं महल्ले च खोखर साहब ने जी लिस्ट बनाई है ना जी, ओदे च दा नाम पवाया जी। वो कौन सी लिस्ट? आ जी पहले रोजे बनाते ने वड्डे लोग, पहले रोजे कौन सी लिस्ट बनती है? आ जेड़ा डीएच च प्लाट वंडे जांदे। हाय तुहानू नहीं पता, पहले रोजे च हुजूर खरात सदकात दी बनदी है लिस्ट। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਂ के मैं ब्रैकेटां च लिखवाया है, नए नोट मिलेंगे। उस्ताद जी ने पनामा च नहीं जी आना, इन्हें यामा थले आ जाना जी। उस्ताद जी अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए। मिनट जरा ठहर जाओ बेटे, अब मौत दे खूह च मोटरसाइकिल तो डिगण वाले आ, और इतना शौक है डिग के कहंदे जी ये आटम दा हिस्सा सी। हाय
खबरदार है भाई। खबरदार मेरे शिगिर्द से कोई ऐसी वैसी बात की। चलो नहीं करते उससे, आपसे कर लेते हैं। हाय ये कौन है जी बस मेडिसिन बेचने वाला डॉक्टर? जनेश साहब ये कौन लोग हैं ये जुमेरात को नहीं आते थे, आज आ गए। ਹਾਏ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟਕੀਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੰਗਣ ਗਏ। क्या कहने उस्ताद? उसे तो आज जाते ही नौकरी से छुट्टी कराऊंगा। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਾਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ? उस्ताद जी जरा तमीज से बात करें, मेरे साथ फैमिली है। ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਂਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। बेटा तुम क्यों इसको साथ लिए फिरती हो जिवें नवी गड्डी नाल काली टाकी लटकाई हुंदी? उस्ताद जी हाँ जी। टाकी और वो भी काली। और तेनू इफ्तिताह वाला रिबन कमा? तमीज से बात करें उस्ताद जी, मेरा पनामा लीग में नाम है और ऑफशोर कंपनी है मेरी। हाँ जी लंदन च इन्हां दी गंडेरियां दी ऑफशोर कंपनी। गंडेरिया हाँ जी कंपनी दा मालक ते जॉनसन है। इन्हां कोल सिर्फ माल दी कटिंग दा ठेका है और नाल एग्रीमेंट के विच जेड़ी गंढ आएगी ना वो भी इन्हां दी होएगी, क्योंकि जॉनसन ते गंढ चूसदा ही नहीं। उस्ताद जी जॉनसन गंड क्यों नहीं चूसदा? वो कहंदा ये गंढ मेरे कोलों नहीं खुलदी, तू रख ले। वही बातें, वही जुगते हैं, वही भांडपन। उस्ताद जी जिहे तुसी गांदे हो ये ऐनक ते मफलर तुसी खुद ही लिया होना। उस्ताद जी ये गल किन्ने दसी? नहीं तू जरा ये नोट कर कि साडा भांडपन तो खुद देख किस बरीकी च वड़ रही। हाय क्या कहने अख्तर इस्लाम अख्तर साहब, क्या कहने? पुत्र बंदे दा पुत्र बन गया, तू फैमिली नाल आया तो मैं तेनू तां नहीं कुछ कहण दे। तो मैनू पता तेरी थोड़ी जी और बेइज्जती हुई ना तो फैमिली ने तेनू घर जाके छुट्टी करा देनी, फिर कितने को और फैमिली लभदा फिरेगा। रोज रोज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं हूँ। हाँ जी गेम बेस पे है। गेम बेस? ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। जनेश ऐसा साहब शोखा है। जिन्हें सब निकालें इनको, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ਮਰੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਚ ਤੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ये कौन लोग हैं जनेश साहब, कौन लोग हैं ये? कदी कदी मिले आकर चल मां दूर रहा ना कर, दिल दीवाना तेरा तेनू क्यों नहीं खबर। कौन लोग हैं ये? ਨਾਨਕੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ, ਆ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? वो और छोटा हो गया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।